start with the invocation. दोनों invocation करेंगे हम, general invocation and Bhagavatam का invocation, and then we will start with the conversation between Narad Muni and Vyasdev. ये उनके instructions के बाद है, जब व्यासदेव question कर रहे हैं नारद मुनि से कि आप अपनी स्टोरी जो है बताइए आगे की, कि क्या हुआ जब वो सारे sages चले गए, Chaturmas ho gaya, you had bhakti in your heart, what did you do after that and how did you become Narad Muni? So वो वाली story आप मुझे बताइए, is what the conversation is going. This is the 6th chapter. हमने almost I think 7 verses कर लिए थे. 7 verses में purport ज़्यादा नहीं थे, it was just translation. He is asking and Vyasdev is answering. नारद मुनि question को question कर रहे हैं व्यासदेव. पहले व्यासदेव को नारद मुनि सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको भागवतम लिखनी चाहिए, और फिर अपनी एग्जाम्पल बताया कि मुझे भी भक्ति उन महाभागवत की सेवा करके मिली, उनसे सुन के मिली, उनके जो रेमिनेंट्स ऑफ फूड है वो लेके मिली. दैट्स हाउ आई गॉट भक्ति. Then that's why you should also write Bhagavatam. Then after that Narad Muni से पूछ रहे हैं व्यासदेव that okay, I understand what your point is. Could you tell me more about what happened after that? That आप अभी नारद मुनि हो, या आप पिछले अपने जन्म की बात कर रहे हो कि when you were a son of a maid servant and you got bhakti, but what happened after that? Like when the sages left, what happened after that? That is something that Narad Muni is now telling. So we'll do the invocation prayers. Om Jnanaatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. We pay our obeisances and respects to ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada, जिनकी वजह से हमें ये भागवतम पढ़ने का भी मौका मिला है. इसके बिना तो प्रभुपाद के बिना हम शायद भागवतम नहीं पढ़ते. हम भागवत कथा शायद सुन लेते मैक्सिमम, बट भागवतम पढ़ने का जो मौका है, like it should be read in the sense that we should read it, hear it from the right source, and while serving the person Bhagavad, that is the way to do it. And we might never have the opportunity to do that, and Srila Prabhupada has brought us that opportunity, and along with it, a platform to actually practice it along with like-minded devotees. And for that, we thank him by saying his pranam mantra. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadine. We also offer our obeisance and respects to
our spiritual masters for enabling us to do this service. And we ask for blessings that may we be connected to the source, and we are just discussing as a transparent via medium whatever our acharyas Vyasadev has presented to us. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna. गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सो हम चैप्टर 6 के श्लोक वर्स नंबर 7 पे हैं. Whoever is online or otherwise, if someone can share the link of that on the group, that will be very helpful. So text number अगर हम देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे. So chapter 6 में now Vyasadev is inquiring about नारद मुनि's life, कि क्या हो रहा है, कैसे उन्होंने नारद मुनि के लाइफ में फिर चेंज कैसे देखा आफ्टर दे हैव लेफ्ट दी महाभागवत, जो उनके घर 4 महीने रुके थे, जिनके सेवा करने के पश्चात, उनसे सुनने के पश्चात उनको जो भक्ति मिली है. Now what happened after that? That is something that he is hearing about. This is actually the symptom. This is actually the sign of a devotee. They want to hear more. Instruction सुन लिया, हाँ ठीक है सर, हो गया, like I'm going, अब ये कर रहा हूँ, हाँ ये है. But once you have नारद मुनि, व्यासदेव को भी अपने गुरु के दर्शन अच्छे लगते हैं कि I'm getting service, I'm getting to see my guru महाराज आए हैं, right? Like हम सब यहाँ पे भी देखते हैं, किसी और जहाँ पे भी देखते हैं, that someone's spiritual master comes, there's a separate energy that my spiritual master has come, right? You have respect for every acharya, in fact, right? But when your own spiritual master comes, it is out of love. You have a special, intimate, personal connection with them that you really want to, like explore and try to serve them as much as possible in whatever way possible उनके लिए, right? तो सबसे पहले सर्विस जो हम कर सकते हैं ये है कि इंस्ट्रक्शंस को मानना अपने गुरु महाराज की, और दूसरा उनसे और सुनने की चेष्टा करना. एंड ये both these things are being demonstrated here by our acharya, which is नारद मुनि. हमारे यहाँ पे आचार्य एक्चुअली नारद मुनि है, व्यासदेव है, राइट? हमें व्यासदेव समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दिस इज हाउ शिष्य शुड बी, राइट? जो अपने गुरु महाराज से सुनने के लिए और चाहिए तो क्वेश्चन करते हैं कि महाराज थोड़ा अपने बारे में और बताइए कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस. दैट इज समथिंग दैट इन दैट मूड ही इज आस्किंग, राइट? इन्वेस्टिगेटिव मूड में नहीं कि अच्छा इसके बाद क्या होगा, मुझे इसके बाद की स्टोरी बताओ, नॉट लाइक दैट, बट इन अ मोर it's a very enduring thing that I want to hear more from my spiritual master. So he asked about 3 things. That one, what did you do, right? एक तो ये देखा कि आपने क्या किया after the departure of the Bhakti Vedantis who instructed you, आपने क्या किया. Number 1, this is question number 1. Then he asked, ये verse number 2 में. Verse number 3, then he asked the question, how did you pass your life after initiation? ये इनिशिएशन कब हुई है उनकी? Would you remember? ये नारद मुनि बने नहीं अभी. When the sages came, they initiated. Yeah, this is last life. नारद मुनि की पिछली लाइफ है ये. आपके इनिशिएशन के बाद आपने अपनी लाइफ कैसे बिताई, क्या किया उस लाइफ में. Then he said कि how did you attain this body? उस लाइफ को कैसे पास किया? Yeah, by shiksha. That's initiation. Like he heard them, he served them, right? By shiksha, in fact, one of the
verses it says that he got initiated by through service and through shiksha, right? And then he says, how did you attain this body? How did you attain this body? Because in this life he has another guru. Who is his guru? Narad Muni's guru? Brahma ji, his own father. Right? ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बर्थ दिया एंड उन्हीं से फिर इनिशिएशन ली, क्योंकि उसके अलावा कोई था नहीं तब. लाइक एट दैट टाइम नारद मुनि केम, सब सिर्फ प्रजापति, दक्ष, ये लोग थे. These are the ones who are there. Not too many people were there in the creation only. So he took initiation from his father Brahma, took shiksha from him. Then he says, so question number 1 was, what did you do after Bhaktivedantis left? Second, how did you pass your life after initiation, and how did you attain this body? वो लाइफ पास कैसे करी और ये बॉडी आपको कैसे मिली? एंड फोर्थ, आपको याद कैसे है? आपको लास्ट लाइफ अपनी याद कैसे है? That is what he is asking. That which happened prior to this day of Brahma, because time destroys everything. ये जो उनका लास्ट बर्थ है, उनका, वो ब्रह्मा के इस डे पे भी नहीं हुआ. इट हैपेंड ब्रह्मास लास्ट डे, प्रीवियस डे. आप समझते हो, डे, ब्रह्मा का डे बहुत लंबा होता है, हमारे डे की तरह नहीं होता. ब्रह्मास डे इज वेरी वेरी लॉन्ग, राइट? इट हैज लाइक, हमारे अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है. कलयुग में देन देयर इज 4, देन आफ्टर दिस इज सत्य. 4 युग हैं बेसिकली, जिसमें से कलयुग का एक पार्ट है वो चतुर्युग. उसमें फिर कुछ चतुर्युग बन के कल्प बनते हैं, कुछ कल्प बन के मनवंतर बनते हैं. हाँ, लाइक दैट, मनवंतर बनते हैं. आई डोंट रिमेम्बर मच. बेसिकली अभी 51st हमारे ब्रह्मा का 51st ईयर का पहला दिन चल रहा है. सो बेसिकली उनका, हमारे पूरी जिंदगी हम उनको हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो वही दिन चलेगा. मेरी पूरी जिंदगी भी बीत जाए. कुछ का एक होता है. हाँ, या और ऐसे लगाने कितने सारे, तो उनके सिर्फ 12 घंटे होते हैं बस. तो ऐसे उनका एक दिन, हम हर दिन उठ के ब्रह्मा जी को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, क्योंकि आज उनका बर्थडे है. हर दिन, क्योंकि उनका तो एक ही दिन चल रहा ना अभी. ब्रह्मा जी, हाँ जी, यस. या I'm really bad with numbers, so I don't even try to remember those numbers, but yeah, it's good to remember that. कहाँ चला गया? या हाँ, तो ये उन्होंने बोला कि हाउ डू यू रिमेम्बर लास्ट डे ऑफ ब्रह्मा इट हैपेंड. क्या टाइम तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, मेमोरी भी डिस्ट्रॉय कर देता है. दिस इज श्लोका नंबर 4. या श्लोका नंबर 4. And then he says, how do you remember this? In the purport, Srila Prabhupada mentions that, I think in the purport, let me see. As spirit is not annihilated after the annihilation of this material body, also spiritual consciousness is not annihilated. Although नारद मुनि की अभी पिछले वाले बर्थ में बॉडी अभी भी मटेरियल थी, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस कैसे हो गई थी? ऑलरेडी स्पिरिचुअलाइज हो गई थी. He was already perfected, right? So because of that, he had nothing. He had fully understood that I am not this body, I am the soul. So when he changed the body, he didn't, because his memory is now not attached to this body. Body change हो जाती है तो memory change होती है. Because मैं किससे, मेरी consciousness कहाँ attach होती है? Body से. But अगर मेरी body से consciousness attached ही नहीं है, my consciousness has become spiritual. Spirit तो change ही नहीं होता ना. Spirit तो बस travel करता है अगली body में. So that's how he remembers his last birth, because he had attained his spiritual consciousness in the last birth itself, not after becoming Narad Muni this time, right? Yeah. Mind, intelligence, ego, your subtle body will be dissolve हो जाती है. Spirit only, yeah, yeah. In fact, I was reading that as you go, even in this material world, as you go up, हमें नहीं जाने की कोशिश करनी जरूरत, बट जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, हम भूलोक पे हैं. जितना हम ऊपर जाएं उतना हमारा बॉडी का जो ग्रॉस पार्ट है वो कम होता रहता है और सटल पार्ट जो है ज्यादा होता रहता है. फॉर एग्जांपल ये जो अर्थ वाटर एयर फायर ईथर वाला पार्ट है वो कम होता रहेगा, और माइंड बॉडी इंटेलिजेंस वाला माइंड इंटेलिजेंस ईगो वाला पार्ट जो है सिर्फ सटल बॉडी
वो ही रह जाता है. In fact, it is said that Brahma ji mostly does not even, he has practically no material body. At least earth, water, fire, ether. He has none of that. उनकी सिर्फ माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो वाली बॉडी है. तो प्रभु अभी हम यहाँ पे अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाते हैं तो हम अपना जो हमारा लास्ट बर्थ था वो हमें याद आ जाएगा? नहीं माता जी, शायद हो सकता है याद रहे, चाहे हो सकता है याद ना रहे, लेकिन ये वाला बर्थ हमें जरूर याद रहेगा अपने अगले बर्थ में भी. ओके प्रभु. या क्योंकि हम अगली बार जब बॉडी चेंज करेंगे तब हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे, राइट? तो हम सिर्फ स्पिरिट कॉन्शियसनेस में. तो इस बार जब हम बॉडी चेंज करेंगे हमें याद रहेगा ये. एंड दिस इज हैपेंड और भी लोगों के साथ हुआ है, जैसे जड़ भरत महाराज के साथ. ही वाज ऑन द लेवल ऑफ भाव. वो भाव के लेवल पे थे. इवन इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डिग्रीज होती है अलग अलग, राइट? श्रद्धा से शुरू होती है, जो श्रद्धा इससे शुरू होने के बाद वो पूरा जाता रहता है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये सब होते होते द हाईएस्ट वन इज इट इज कॉल्ड प्रेम. उससे एक लेवल, जस्ट एक लेवल नीचे इज कॉल्ड भाव. वेरी हाई, इट्स अ वेरी हाई लेवल, राइट? भाव इज वेरी हाई. ऐसा नहीं कुछ छोटी मोटी चीज है. उस लेवल पे आके भरत महाराज गॉट अटैच्ड टू अ डियर, बेबी डियर. उनके उस लेवल पे थे वो, और वो किससे अटैच हो गए? बेचारे डियर से. कैसे अटैच? उनकी सेवा, उस डियर की सेवा करने लगे. बचा लिया था कहीं से, उस डियर की सेवा करने लगे, ये करने लगे. और एट द एंड ऑफ लाइफ उनकी कॉन्शियसनेस किस में फंस गई? डियर में फंस गई. कैन यू इमेजिन? भरत महाराज जैसे, जिनके ऊपर ये भारत वर्ष नाम है, भारत वर्ष का सब कुछ छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया था उन्होंने. लाइक हिज कॉन्शियसनेस वाज गॉन. किससे अटैच हो गए? डियर से अटैच, डियर के बच्चे से अटैच हो गए. एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ दैट लाइफ, ही शुड हैव लेफ्ट. He should have gone to Goloka. Where did he go? He became a deer. He became a deer. Can you imagine? Human birth भी नहीं मिली. He became a deer, but because he was on the level of bhava, he remembered his last life. So that's the risk of keeping pets at home. Yeah, or having anything that you're attached to. Pets का तो होता ही है, but तो visible है कि हाँ का तो होगा ही होगा, लेकिन और भी हम what not, हम किससे अटैच नहीं. राइट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे बच्चे हैं, बीवी है, पति है, उनका तो हम we have to be, that's our duty, right? But pets are not our duty anyway. वो तो हमने अपने सर पे चढ़ाई हुई चीज है, right? Like for example, if we keep a pet at home, no, that pet would not, has not asked you to keep it at home. In fact, we breed dogs so that we can keep them as toys, and we put a sweater on the dogs ताकि dog cute लगे. पता नहीं उसको गर्मी लग रही है, नहीं लग रही है, सर्दी. किसी ने पूछा उस डॉग से? बेचारा, मैं आप सीन डॉग, वो अपना पहले हटाने की कोशिश करता है, उसको हटाओ, इसको हटाओ. हाँ, like I don't know what's happening in them. I don't understand it, but I'm saying that some animals are supposed to be domesticated. Other animals do not belong inside the house. You feed them. There is all in the Vedic injunctions. It is said that you have to take care of all beings that are dependent on you. Crows, cows, dogs, whatever is around you, take care of them. But how do you take care of them? आप टेक केयर कैसे करोगे? सब हर चीज का तरीका होता है टेक केयर करना. फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे अगर हमारे किसी नियर एंड डियर वन को कोविड हो गया होता, हुआ भी है हम सबको, तो हम क्या करते थे? व्हाट इज द तरीका टू डू और टेक केयर ऑफ देम? क्वारंटीन करके ना. there's a way to do it. नहीं कोई बोले नहीं नहीं, हाँ बीमार लोग को आपने अकेला छोड़ दिया, ये तो बहुत बहुत मतलब निर्दयी हो आप, निर्दयी हो. बोल सकते हैं ना ऐसा? कोई भी बोल सकता है ऐसा. बट हर चीज का क्या है, तरीका है, ताकि उनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी. I understand that the dog is a spirit soul.
वो और मैं भाई भाई हैं, असली में मैं और जो जीवात्मा है वो भाई है, राइट। बट अभी मैं ह्यूमन, मेरा एक मटेरियल डिजीज है और उसका भी एक मटेरियल डिजीज है। मेरी ह्यूमन बॉडी में है और वो डॉग की बॉडी में है। मैं उसको सर पे लेके नहीं घूम सकता हूँ। अगर मैं उसको सर पे लेके घूमने लगा, हाँ इसको मैंने मार दिया तो ये पूरे समय दिमाग में चलता रहता है। दिस इज वेरी नाइस कॉन्शियसनेस, दिस इज वेरी नाइस कॉन्शियसनेस। बट हर चीज का तरीका होता है, राइट। आप डॉग को मैं अपने सर पे चढ़ा लोगे तो उसका भव रोग आप पे चढ़ेगा। जैसे कोरोना में भव रोग, इस हमें भव रोग है। वी ऑल हैव अ डिजीज ऑफ मटीरियल कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं भव रोग। भव रोग, अच्छा बोला नहीं है क्या मैंने पहले? मैंने आज प्रभुपाद को दो तीन बार बोलते हुए सुना, इसीलिए मटीरियल हमें, वी हैव अ डिजीज, वी आर नॉट मटीरियल बॉडी, वी आर स्पिरिट, बट वी आर थिंकिंग आवरसेल्व्स एज it's a disease that we have, that I'm misidentifying myself as this body. I'm misidentifying as myself as matter. It's a disease that I have, and more intense the disease, the different the body, the different the planet. Is this okay to understand? Just like that, animal body में उसको और intense है, आप उसको चढ़ाओगे तो उसका भवरोग आप पे चढ़ेगा। एक तरीका होता है टू टेक केयर ऑफ अदर, यू हैव कंपैशन, बट देयर इज अ वे। या यू हैव कंपैशन, गिव देम फूड, but where to give them food, how to give them food, what to give them also. We think that इसको ना हलवा खिला देते हैं। how bad हलवा is for dogs? हम सोचते हैं कि मैं इसको क्या खिला रहा हूँ, घी भरा हलवा, right? But how bad is it for the dog? It's really bad for the dog. उसके लिए पॉइजन है वो। मुझे इसलिए याद है कि हम छोटे होते थे उस टाइम पे, तो थोड़ा सा भी इतना भी नॉलेज नहीं होता था। तो आवर नीचे जो हमारे रहते थे उनके पास डॉग होता था, एंड माय फादर यूज्ड टू लव फीडिंग द डॉग चॉकलेट्स। वो तो पागलों की तरह चॉकलेट खाने आता था। और मेरे घर में कुछ भी घी का बनता था ना, उसको पता नहीं क्यों घी की स्मेल से वो पागल हो जाता था। जस्ट यूज्ड टू रन अराउंड, ऐसे कि दरवाजे के बाहर बंद कर देते थे हम, ताकि वो बाहर ही घूमे। वो घी के स्मेल से पागल हो जाता था, पता नहीं क्यों। And then we realized later, someone told us, that a veterinary or someone, that it's really bad for them. It's not good for them. So there's a way to treat dogs. There's a way to give them compassion, right? We can be compassionate, but in the name of being compassionate, if we do things which are actually not good for the dog also, not good for me also, दोनों का बेड़ा गर्क हो रहा है, दोनों का ही खराब हो रहा है चीज, right? Not good for us, not good for anybody. So we should think a little deeper, that no, you're not doing a very good thing by adopting or whatever, keeping, or even spaying for that matter. Who gave us the right to neuter dogs? आपके साथ कोई करे तो, like nobody took your consent, and if you get neutered, what happens then? Do you feel good? You don't feel good. नहीं, इनके लिए अच्छा होता है, इनके बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर मर जाते हैं। हाँ, आई नो, बट हु गिव अस द राइट टू डू दिस? इन सब का कर्मा मिलता है हमको। ऑल ऑफ दिस वी अर्न द कर्मा फॉर, that we are doing something to some other living being without, who gave us the right to do this? हम कौन से अथॉरिटी होते हैं करने वाले? गवर्नमेंट करे ठीक है, जो भी, आई डोंट नो, बट हाउ कैन आई डू दिस, राइट? एनीवे, why was I talking about all this? हाँ, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि हम जितना ऊपर जाते हैं उतनी हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सटलर होती जाती है, राइट? ब्रह्मा जी की हमने बात करी, नीचे जितना जाते हैं उतना और ग्रॉस होता जाता है। राइट नाउ वी हैव सटल एंड ग्रॉस, दोनों मिक्स है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा नारद मुनि से, दैट ये सब पूछा। फिर नारद मुनि बताना शुरू करते हैं 5th से 10th श्लोक तक। 5th श्लोक में उन्होंने बोला कि आफ्टर इम्पार्टिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वो चले गए और मुझे ऐसे अपने लाइफ को बिताना पड़ा।
फर्स्ट ऑफ ऑल 6th में उन्होंने कहा कि आई वाज द ओनली सन ऑफ माय मदर, कि मैं अपने माता का अकेला पुत्र था. I was the only son of my mother, and she was a very simple maid servant. Being her only shelter, she bound me with the tie of affection. He did his duty. Narad Muni, even after being spiritually conscious, he said, "Nahi, kaun mata, kaun pita." Nahi, he didn't say any of that. Krishna says in the Gita that we are not this body, we are the soul, but we have how many dharmas? 2 dharmas. हमारे 2 धर्म होते हैं. बॉडीली धर्म निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो माँ का उन्होंने पूरी तरह ख्याल रखा, उनको देखा, सब कुछ किया. मेंटेनेंस. 7th वर्स, नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट नहीं थी. शी कुड नॉट मेंटेन मी प्रॉपर्ली ऑल्दो शी वांटेड टू. वो बेचारी मुझे मेरा टेक केयर करने की कोशिश करती थी. अपने माँ के बारे में बता रहे हैं. Everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master, right? He's saying that she was not being able to do anything for me. The world is under the full control of the Supreme Lord. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. हम सोचते कि हम किसी का ध्यान रखेंगे, लेकिन हम किसी का ध्यान, हम अपना ही ध्यान नहीं रख सकते हैं. हम किसी और का ध्यान. This is a big reminder for us, especially when we are leaving this body. Especially when I am leaving this body, that time these thoughts are very strong. अरे मैं चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा, इनका ये कर दूंगा, वो नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते. You're not being able to save yourself. तुम मरने वाले हो भाई. We should think that I myself am dying. What will I save others? But does that mean, this is a very, very delicate balance, right? Does that mean I don't do anything for anybody else? No. I do my duty, but I do not become overtly attached. कि अरे क्या होगा, क्या मैंने ड्यूटी करी अपनी, जो करना था क्या किया. I have done everything. Now I should save myself. अब मेरा टाइम ये करने का मेरा टाइम नहीं है. That's the reason why first 25 years brahmacharya, next 25 years from 25 to 50 is grahastha. That's when you take care of your family fully, right? While doing your spiritual activities, take care of your family. In fact, your duty, our duty is to make and help each other become more and more spiritual in nature. While taking care of our bodies, while taking care of the house, earning, taking care of the children, सब कुछ करते हुए ये 25 years मिलते हैं हमें, 25 to 50. इसमें हमारा प्यूरिफिकेशन होना चाहिए. सेवा करके हम एक दूसरे की, भगवान की साथ में सेवा करके हम क्या होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं. अब 50 साल में हम ऐसे प्यूरिफाई हो जाने चाहिए. ये प्लान होना चाहिए. दिस इज माय रिटायरमेंट प्लान. दिस इज द इन्वेस्टमेंट प्लान दैट आई शुड रियली बी हैविंग along with my material investment. That is one dharma. But what is my nitya dharma? ये मेरा एक्चुअल रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए कि 50 साल में ऐसा मेरा प्यूरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ये सेवा हो जानी चाहिए मुझे. एक्चुअली फैमिली लाइफ ना हमें बहुत, किसी भी, आप एक टीम में काम करते हो तो आपको टॉलरेंस की जरूरत है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कभी ना कभी, they say that you should never do business with your loved ones. What happens when you do business with your loved ones? The relationship goes bad. That's what happens, right? Why does it happen like that? Because ये तो आपका loved one है, इसके साथ तो आपको और अच्छा तालमेल बैठना चाहिए. Expectations. That's the expectations है हमारी. क्या ये तो मेरी सुनेगा ना मेरी, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं करता, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा. So it gets even worse, in fact, right? So the idea is that जब 2 बर्तन साथ में होंगे तो क्या होगा, वो खनकेंगे. Have you heard this term? That बर्तन साथ होते हैं तो वो खनकेंगे. तो in family life, especially grahastha life, it's a big deal, learning for us, all of us. In fact, I'm going through it. I have to learn this, that we have to learn tolerance. We have to tolerate everything that is going around us. We have to tolerate our own egos more than anything else. कि मेरे को कैसे बोल, मेरे को कौन, like you or who? If I every day, Mataji had sent me long time ago,
she had sent me 3 verses, जिसका एक वर्स मैं हर दिन आज भी before chanting my rounds I recite. The verse goes like Chaitanyera Das Muni Chaitanyera Dasa Chaitanyera Das Muni Dasera Da Tanra Dasera Dasa. So that basically means I'm reminding myself that मैं किसका दास, मैं दास हूँ. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या हूँ, दास हूँ, मैं सर्वेंट. सर्वेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. सर्वेंट की क्या होती है कि मुझे आप इंस्ट्रक्शन दो, मैं ये काम करूंगा. किसका दास हूं? दास भी हम बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं. अपने बॉस के दास हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के दास हो सकते हैं. दास तो हम बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, लेकिन हम किसके दास हैं? चैतन्य. हम चैतन्य महाप्रभु के दास. I have to remind myself every single day. And what has he taught? He has taught Trinadapi Sunichena Tarurapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Kirtaniya Sadahari. Yeah, the verse basically means, I'll actually read it out. Shikshashtakam ka verse hai. So I'll read it out just to be fully. It basically means Trinadapi Sunichena. Trin matlab, what does trin mean? Ghas ka tinka. One should be more, one should think oneself lower than the straw in the street. My spiritual master also says कि एक जो गिरा हुआ घास का तिनका है उसकी क्या वैल्यू होती है? You can get something, उसको उठा के आप किसी को दो, will you get something in return? What will you get? It's useless. So he's saying one should think oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree. Why tree? Because tree tolerates rain, sun, hail, snow, and it's always giving you still shade, fruits, everything. And it bends down. The more fruits it has, it bends down to actually give more, right? That's a tree. So you should be more tolerant than a tree. Only if you do this, then what can you do? Kirtaniya Sadahari. This is what makes us qualified to chant. We chant this every single day, by the way, but it's very difficult. It sounds only demeaning कि यार अपने आप को इतना नीचे क्यों करूं मैं? खुद ही समझ ही नहीं आ रहा मुझे. अपने आप से क्वेश्चन सुन के हमें खटक रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. इट सेज अमानी ना माना देना कीर्तनीय. और थर्ड थिंग क्या करनी है? खुद के लिए कोई जीरो मान एक्सपेक्ट करना है. आई शुड एक्सपेक्ट zero respect for myself, zero. And not just that, रिटर्न में क्या करना है? अमानी ना माना देना. सिर्फ मान क्या करना है? मुझे देना है. You know, this is the secret to a very peaceful, happy life. Because expectations are, कोई क्या ही बिगाड़ेगा तुम्हारा? क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? आप मुझे बताओ, क्या बिगाड़ लेगा कोई? हमारा बिगड़ता क्यों है? मुझे होता है कि मुझे नहीं मिला तो मेरे हृदय में पेन होता है. अब मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो मुझे सिर्फ खुशी ही होगी. कोई दे भी देगा तो मुझे क्या होगी? क्योंकि मेरे को अरे ये तो मुझे एक्सपेक्टेड. कितना इनोसेंट लाइफ. बट इट साउंड्स फैंटास्टिकल. इट साउंड लाइक ये कैसी लाइफ है? हाउ कैन यू डू दिस? बट इफ यू डू दिस देन यू कैन चांट वेरी नाइसली. Expectation to right from the childhood शुरू हो जाती है. Yeah. What's the way? It's like our nature. It's a part of us. It's part of our nature. Especially मेरी तो है. But मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ. एक्सपेक्टेशन का सर्कल छोटा कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस लेवल पे मैं हूँ, ग्रेजुअली होता है माता जी. बिल्कुल हर किसी से जीरो नहीं कर सकते. बाहर के लोगों से कोई बात नहीं. अपने घर के लोगों की बात आएगी तो फिर मुझे एक्सपेक्टेशन हो जाएगी. बिल्कुल मगर प्रभु बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं खत्म कर सकते. चलो सबसे कर सकते हैं, और बच्चों से कैसे खत्म कर सकते हैं? बच्चों से तो सबसे पहले करनी चाहिए माता जी कि एक्सपेक्टेशन नहीं. हमें सब पूरा प्यार देना चाहिए, बट बच्चों से एक्सपेक्टेशन तो जीरो रखनी चाहिए हमें. क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, फिर वो ऐसे नहीं पढ़ेंगे. सो एक्सपेक्टेशन इज वेरी डिफरेंट.
वो पढ़ाई करे, ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी है माता जी, ये तो हमारी इच्छा है उनके लिए ताकि वो ये करे, लाइक, और मेरा ये ड्यूटी है कि मैं उनसे पढ़ाई करवाऊं, राइट, ये मेरी उनसे अच्छा, ड्यूटी है। ये तो ओके। ये सब तो ठीक है, बट कि वो मेरे लिए कुछ करे, वो हाँ भी हाँ, मुझे वो प्रेम सब नहीं करे, करना चाहिए। ये सब क्या है, ये बड़ी अटैचमेंट्स है, सम्मान दे, है ना, लाइक बहुत बड़ी अटैचमेंट्स है। क्योंकि शायद हो ना हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकता हूँ बस, और वो मुझे देनी चाहिए। लेकिन वो कैसे बड़े हो, क्या करे, वो मेरे हाथ में नहीं है। स्पेशली व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग ओल्डर, मैं ऐसे बड़े बूढ़ों की तरह बात कर रहा हूँ अभी, जैसे मैंने बहुत बुढ़ापा देखा है, नहीं देखा है, बट at least in theory I know this, that when we get older our whole brain gets really preoccupied with मेरे से कौन बात कर रहा है, मेरी बात कौन सुन रहा है, मैं किसको जाके अपनी बात सुनाऊं, all that really heightens up, right, if we don't have spirituality, if we don't have spirituality। मतलब फिर प्रभु जो कहते हैं जितने बड़े लोग होते जाते हैं उन्हें चेंज करना उतना ही मुश्किल है, तो मुश्किल है। इसका मतलब यही है कि वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता स्पिरिचुअलिटी में है कि नहीं है, बट अगर माता जी, हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैंने देखा है माता जी, मैंने ऐसे बूढ़ों को देखा है जो जिनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है, वो इतना अपने आप में रह रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनसे कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, पॉजिटिवली बिजी है, दे आर नॉट सिटिंग आइडल, they're doing a lot more than us, in fact they're chanting, they're serving, whatever, in whatever capacity their bodies are allowing, they're serving, hearing, and someone, then you actually get respect for them, यार दादाजी से जाके पूछूंगा मैं, वो बड़े विजडम वाइज वाले लग रहे हैं, उनसे मैं जाके पूछता हूँ, दैट इज व्हेन यू गेन रिस्पेक्ट, कि मैं किसी को नहीं तंग करता, मैं अपना बहुत सब कुछ करता हूँ, मैं किसी को फ्री में ज्ञान नहीं देता हूँ, लेकिन तब people get respect, no, I should go speak to them, I should learn from them, I should maybe help them. That's what Prabhupada did. Prabhupada was a Buddha person. Prabhupada was 70 years old, but Prabhupada wasn't giving free jnana, Prabhupada was giving prem, Prabhupada was giving love, and he was practicing himself, right, that's what he did anyway. So many sons and daughters. He got so many sons and daughters, we are still his granddaughters, grandsons, that's what we are, right, and it is said that grandsons, granddaughters get more prem, so we should get more mercy from Srila Prabhupada. So this is a lesson for us that at the end we want to take care of someone, we should take care of them, but we should not think that I took care of this person, I should do my duty, but taking care is in the hands of, here it is said, therefore everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. Because वो ये नारद मुनि को दिख रहा था बेचारा, वो सोच रहे थे कि ये मेरी माँ मेरे से बहुत अटैच्ड है और मेरा पूरा टेक केयर करना चाह रही है, लेकिन बेचारी कर नहीं पा रही, इसलिए उसको उनको देख के उनको याद आ रहा है ये कि एक्चुअली हम सबकी हालत ऐसी है कि हम अपने लव्ड वंस की, अपने अराउंड लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट नथिंग इज इन माय हैंड्स, राइट। टेक्स्ट नंबर 8, डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि I was a 5-year-old child living in a Brahmana school. अहम च तद ब्रह्म कुले उषीवांस्तद उपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। I was a 5-year-old, when I was a mere child of 5 years, I lived in a Brahmana school. I was dependent on my mother's affection and had no experience of different lands. मैं तो 5 साल का बच्चा था जब उनकी पूरी, he was purified already, तब वो कितने साल के बच्चे थे, कहाँ रह रहे थे, एक गुरुकुल में, ब्राह्मण स्कूल। I was dependent on my mother's affection and had no experience of different lands. I heard something very, it's a little tangential to what
is being discussed यहाँ पे. But यहाँ पे ना बहुत एक interesting point है हमारा. हमारे शास्त्र हमें लगता है कहते हैं कि स्त्रियों को कहाँ रहना चाहिए, स्त्रियों को कहाँ रहना चाहिए, घर पे रहना चाहिए. तो अच्छी नहीं लगती ये बात की ऐसे घर पे क्यों रहना चाहिए, हमें भी बाहर घूमने का है, राइट. बट यू नो व्हाट शास्त्र टेल कि काम कहाँ करना चाहिए. चाणक्य पंडित ऑल्सो सेज दिस कि बेस्ट सिचुएशन है जब कोई पर्सन कहाँ से काम करे, घर से काम करे. ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है. बेस्ट सिचुएशन हर किसी के लिए ये कि कहाँ से काम करे, घर से काम करे. ये जो ब्राह्मण स्कूल की बात हो रही है, सारे स्कूल्स कैसे चलते थे, जो गुरु होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो अपना स्कूल कहाँ से चलाते थे. कहीं स्कूल बना थोड़ी होता था, घर उनका गुरुकुल होता था बस. दे यूज्ड टू जो उनका घर था वही गुरुकुल था. जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार क्या होते हैं, यू नो कुम्हार, पॉटर्स, वो कहाँ अपना वो ऑफिस थोड़ी जाते थे, ऑफिस जाके मैं पॉट बनाऊंगा, नहीं. वेयर इज द कुम्हार, उनका कॉलोनी होता था बिल्कुल कि ये कुम्हारों की कॉलोनी है. और यहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ रह के काम कर रहे हैं, घर पे रह के काम कर रहे हैं. ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ कहाँ रह के काम करते थे, घर पे रह के काम करते थे. जो ट्रेडिंग होती थी जाता था उस साइड से, दैट यूज्ड टू गो हियर एंड देयर, दैट्स ऑल. People used to take that here and there, right? Who used to be doing the running around? In fact, most running around, Shudras. Shudras used to be doing the most running around, and वो भी many of them used to be maid servants. वो कहाँ रहते थे, घर पे रहते थे, किसी के घर पे रहते थे ना. वो उनका घर उसी के साथ में होता था. They used to have a quarters for them, right? Most people were working from, हमें लगता है वर्क फ्रॉम होम अभी कोविड में है. इसीलिए बोलते हैं कि कोई अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम पूरी कर पाएंगे और वर्ल्डली एंगेजमेंट सब कुछ कर पाएगा. कहीं आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंसेस नहीं है. चाणक्य पंडित says something amazing. He says a happy person is that person, especially working people. He says a happy person is that person. I'm paraphrasing, I'll find the exact one, but he says कि a happy person is that person who has no debt. Number one, no debt, not no death. वो तो है ही, वो तो हमें है spirituality में. No debt, no loan. Second, he says a person who has their meals, at least their hot meals at home. Hot meals at home. And one more thing he says, 3 things he says. They're amazing. Something like that. I'll find out. But Chanakya Pandit says something amazing. Like I'll find out. Something like that, yeah. उन्होंने ये कहा था प्रभु कि आपका काम आपके घर के पास ही हो, कुछ घर के पास से हो. That's the third one, yeah. जो हमने अभी बात करे थे, घर के पास. घर के पास हो, hot meals at the right time, and third was no rain. Right? Now tell me that this is the definition of Chanakya Pandit, not too far away, by the way. Chandragupta Maurya के time पे थे वो, right? And now in this definition, who is happy in today's world? How many people are happy? No debt. Mataji is happy. And that is exactly, you should be happy about it. Anybody who can do this, they should be happy. But the world makes us feel कि नहीं, ये नहीं, this is not what we should do, right? But anybody who can really, वो बहुत भाग्यशाली. I want to do this. Krishna is making it happen. थोड़ा बहुत, but yeah, right? This is how the definition of a happy person. And we should aspire toward. This is what we should aspire towards, really, yeah. And not with greed. Anyway, that was a separate point. Text 9. Ekada nirgatam geha duhantim nishigam pathihi sarpo dashat padash prishtha कृपणाम कालचोदितः.
माता जी हिंदी में। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूधने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस दिया। This is what happened. The Lord was like, he makes arrangements for his devotee, and ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? Now tell me. नारद मुनि जब वो पिछले लाइफ में थे, मेड सर्वेंट के पुत्र थे, उनकी वो 5 साल के थे, डिपेंडेंट ऑन हिज मदर फॉर ऑल अफेक्शंस, मदर इज ट्राइंग टू डू सिंपल पर्सन. नाउ व्हाट हैपेंस? एक सांप ने माँ को डस लिया. इज गुड थिंग हैपन, बैड थिंग? ऐसे बेकार है लेकिन वैसे बेकार. मतलब लेकिन वैसे अच्छा है कि अब उनको कोई Yeah. Yeah. It's not to say that the mother was stopping him, the mother was a baggage, or the mother was some barrier or something like that. No. Yeah, he felt responsible, but his mother got liberated from material existence, got liberated, and Narad Muni got to do what he actually supposed to do. Krishna arranges things. We can't generalize this. Yeah. So Narad Muni this level पे थे, Correct. he could do that. His intensity But was that. normal person like us, if We can't. like this happen to him, he will not be able to get Take to it bhakti. only. He will not do bhakti, he will do something maybe Opposite of bhakti. So Krishna knows the heart, as you said. Krishna knows the heart of the devotee, and Krishna, in fact, there's a this separate verse. He says ki on someone who I have very special mercy on, special mercy. He says मैं उसका सब कुछ हर लेता हूँ, सब कुछ ले लेता हूँ उससे मैं. I take away his wealth, I take away their family, I take away everything from them. Why? हाँ. Yeah, because now my dependence is only on Krishna. But devotees get very scared of this. ठीक है, वो कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम लूट जाएंगे. Yeah, हम तो लूट जाएंगे. Don't worry, हम इतने बड़े भक्ति नहीं है. Yeah, हम भक्त नहीं इतने बड़े. एग्जाम में बैठेगा उसी को तो आईएएस का पेपर देगा. हमें शायद ये टेस्ट पता नहीं कभी ना आए. I don't know. Right? Because I don't think we have the capacity. I don't have the capacity. I personally don't. तो कृष्णा लाइक इसको ये मत दो, इसको अभी वो कूटो के आटे वाला एकादशी करवाओ, इससे वही होएगा. This person is for that. Yeah, that's all. And but this is what happened this is the story of Narad Muni. This is what happened. One night while going to milk a cow, my mother was bitten by a serpent influenced by supreme time. Special mercy. 10th verse. Tada tad. I'm just reading the purport also actually. 9th ka, kyunki chota hai. That is the way of dragging a sincere soul nearer to God. The poor boy was being looked after by only his affectionate mother, yet the mother was taken away from the world by the supreme will in order to put him completely at the mercy of the Lord. Text 10. Tada tad aham ishasya bhaktanam sham abhipshatah anugraham manyamanaha pratishtham disham uttaram. This is how an actual devotee takes it. And maybe हमारे साथ ये इतना बड़ा कुछ ना हो, but छोटी मोटी चीजें तो हमारे कर्म के हिसाब से होती ही रहती हैं, right? This is how this verse tells us how do we react, how should we react to that, right? Says translation में माता जी, मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं और इस प्रकार सोचते हुए मैं उत्तर की ओर चल पड़ा. I took this as the special mercy of the Lord who always desires benediction for his devotees. क्या फेथ है भगवान के ऊपर नारद मुनि का कि भगवान भक्तों के लिए क्या चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर ही चाहेंगे, boon ही चाहेंगे, benediction ही चाहेंगे. And so thinking, I started for the
North matlab toward the Himalayas, right? Confidential devotees of the Lord see in every step a benedictory direction of the Lord. What is considered to be an odd or difficult moment in the mundane sense is accepted as special mercy of the Lord. Mundane prosperity is kind of a material fever, and by the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished, and spiritual health is obtained step by step. Mundane people misunderstand it. It is still scary just to think about it, because इससे हमें actually हमारा दिखता है बैरोमीटर, हमारा समझ कि हम कितने पानी में है. हम जितना भी बोल लें कि मैं भक्त हूँ, मुझे भक्ति करनी है, अभी भी मुझे क्या डर लग रहा है कि भक्ति करने से मेरा क्या चला जाएगा, मेरा मटेरियल कंफर्ट चला जाएगा, right? Nobody is saying that, but even if that were true, हमें डर क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरा फेथ भगवान पे थोड़ा है, इसलिए हम आज भागवतम क्लास में बैठे हैं. बट मेरा फेथ किस पे भी है साथ में? मेरे बैंक बैलेंस पे, मेरे गन पे, मेरे मंत्रियों के कनेक्शन पे, मेरे इंटेलिजेंस पे, मेरे फेम पे, मेरे ब्यूटी पे. ऑल ऑफ दिस आई हैव डिवाइडेड फेथ. I have divided faith in all of these. तो ये जो faith है हमारा, not a bad thing. Gradually it'll condense into our bhakti on Krishna. It will happen. That is the condensation, the condension of this faith actually is ये जो प्रेम तक हमने बात करी थी, श्रद्धा शुरू कहाँ से हुई है? वो बात श्रद्धा से शुरू हुई है. कहाँ से? Faith. तो नथिंग, फेथ का ही कंडेंशन टिल प्रेमा इज बेसिकली उसी का गार्ड होते रहना, कि और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं. दैट कंडेंशन इज ओनली ऑल दीज स्टेप्स इन भक्ति. तो दैट विल धीरे धीरे हैपन. We don't have to force it, we don't have to feel bad about it, we don't have to orchestrate anything, but we have to just work according to the will of the Lord. That's all. He is not a person who is cruel. Sudama was a bhakt of his. What did he give him? He gave him everything. Lakshmi ji had to stop him. Lakshmi ji in the form of Rukmini, in fact, right? You know the story of हम द्वारका गए थे. Maybe whenever we take the trip to Dwarka, तब हम सुदामा की उस जगह पे जाएंगे जहाँ सुदामा मिले थे. वहां पे as prasad, you know what they give? Who's been to Dwarka? Have you been to Dwarka? वहां पे as prasad they give वो क्या, चूड़ा नहीं, चूड़ा ही बोलते हैं उसको, broken rice. हाँ, जो सुदामा लेके गए थे वो as वो देते हैं प्रसाद, राइट? एंड वहां पे जब भी महाराज लेके जाते तब हम वहां पे प्ले करते सुदामा वाला. So that's why we remember it. So सुदामा कुछ नहीं चाहते थे, बहुत ही गरीब थे, huge, very devoted to the Lord, has not asked the Lord for anything, but the wife says कि your friend is, our halat is very kharab right now, please go to your friend and ask him for help. It's nothing wrong in that, please do that. He was very, तो मैं भगवान के पास जा रहा हूँ तो कुछ ना मुझे क्या करना चाहिए, लेके जाना चाहिए. तो क्या है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बट दे गेव सम कुछ ब्रोकन राइस. वो भी बड़े शर्म से लेके गए, वो ये क्या दूंगा मैं द्वारकाधीश को, वो तो इतने बड़े राजा है. गए, just to cut the story short, at the द्वारपाल ने रोका. There's a famous song also on that. अरे द्वारपालो, there's a song also on that. But the Dwarpals stopped them. But Krishna, जैसे कुछ होता है नहीं, कभी खुशी कभी गम में शाहरुख आते हैं तो जया बच्चन को पता लग जाता है ना कि आया है, तो भगवान कृष्ण को पता लग गया कि द्वार पे कौन है, सुदामा खड़ा है. So he saw that Sudama is there and he came running from, he didn't wait inside, he is the king, and he came run. Just imagine
I mean, what to imagine? Like he's the Lord of the universe and he's sitting in his full opulence. राष्ट्रपति भवन जाए, मोदी जी हाँ, वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं. वो भी मुझे छोटी, मैं छोटी बात है, but कंपेयर ही नहीं कर यही पा इतनी बड़ी रहा. बात हाँ, मैं कंपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को. हाँ, like but he in Dwarka, he's the king and he's running and the Dwarpal is looking, ये किसको गले लगा रहे हैं मेरे भगवान. Like वो ऐसे प्रणाम करें और ये फटीचर, ये कपड़े भी नहीं ढंग से पहने, इसने तो उसको गले लगा रहे हैं. एंड गले लगाते हुए भी सुदामा को क्या लग रहा है? शर्म आ रही है सुदामा को. ऐसा नहीं देखा, द्वारपाल को ये नहीं बोल रहे वो, देखा ये आता है टशन में ना, ही शर्मा रहे बेचारे कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए, इनके कपड़ों पे गंदा हो जाएगा, ये सब सोच रहा है सुदामा. बोन, हाँ, कि लग रहा है कृष्ण को, आई एम हर्टिंग विद माय बोन्स. लग रहा है कि कहीं मैं अपने हाँ, कि मार ना दो इसको, इसमें तो जान ही नहीं बची, मैं I'm just gonna stifle him. So he took him by his hand, took him and made him sit on his own throne. Made him sit on his own throne, washed his feet, started crying while washing his feet. उनके आंसू उनके चरणों पे गिर रहे हैं, उनके आंसू गिरते हुए उनके चरणों को वॉश कर रहे हैं. He's doing this, Krishna is doing this, and Rukmini is sitting and Rukmini, ये कौन है, किसको ले आए? Rukmini and Satyabhama must be thinking, we love the Lord, but the Lord is crazy. Does keep doing things, कुछ पता नहीं क्या करते रहते पूरे दिन, but this is what he was doing. And then she, like, who is this? He's like, तुम, yeah, he's like, तुम कुछ लेके आओ. He fed him, he did all that. He didn't give him choda, by the way. Didn't give it to him. He's like, he was hiding it in. शर्म आ रही थी ना कि ये कैसे दे दूं मैं. Then he's like, ये क्या छुपा रहे हो तुम मेरे, ये क्या छुपा रहे हो? Then he's like, ये मेरे हिस्से की है. He reminds him that when he was in Gurukul, लकड़ी लेने के लिए भेजा था, in a storm they got stuck or something, and the Guru Mata had sent some chidwa only, कि ये दोनों मिलके आप खा लेना. But Sudama had eaten the whole thing and hadn't given Krishna anything. Actually, his daridrata, some say, I don't know, I'm not sure of it, had come also because of that. He did such a big offense to the Lord. In part of Leela, actually, this is, right? Sudama didn't care. Sudama didn't care that he was daridrata aayi ki nahi aayi, whatever. He was the devoted to the Lord. But he's like, this is my share. You remember that? And he's like, you remember? And then he ate one. And like, this is the best thing that I just imagine some person who has everything at their disposal. Annapurna Mata is basically, giving. And then he is eating that dry chuda, and then he's saying, this is the best thing. One, एक निवाले में एक वर्ल्ड दे दिया, दूसरे निवाले में दूसरा वर्ल्ड, तीसरा निवाला खाने वाले थे. देन रुक्मिणी माता वाज लाइक, रुक जाओ, मेरे को भी बेच डालोगे क्या? वेट. बट या, देने के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान लेते हैं सिर्फ, कि भक्त के लिए सिर्फ he's saying special mercy and all. This is also special mercy. So we shouldn't be scared. Either ways we shouldn't be scared. First we shouldn't be scared कि नहीं मेरे से सब ले लेंगे. देने वाले वही हैं, वो देने वाले हैं. Yeah. In fact I should pray कि मेरी कैपेसिटी ऐसी बने कि मेरे से भगवान ले, मुझे ये स्पेशल मर्सी चाहिए. करेक्ट. या, प्रमोशन कैसे होगा? तो कैपेसिटी हमारी बढ़ाने की हमें सोचनी चाहिए, ना कि नहीं मुझे यहीं पे रहना है, अभी क्लास 2 में ही रहना है मुझे. राइट. लास्ट श्लोका फॉर द डे.
Text 11. Pitan janpadamstatra स्मिता जानपदाशस्त्र puragrama vrajakaran पुरग्रामाव्रजाकरा खेटखर्वटवाटिश्च कीटकर्वटवाटिश्च वनान्या उपवनानि च। वनान्या उपवानि च 11 से 19 के श्लोक में ही बेसिकली टॉक्स अबाउट ज्योग्राफी कि मैं नॉर्थ चलते चलते कहाँ कहाँ से गुजरा, राइट। ट्रांसलेशन आप पढ़िए माता जी। प्रस्थान करने के बाद मैं अपने समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। आफ्टर माई डिपार्चर, ये आप सोच सकते हो व्हेन वाज भागवतम कंपाइल्ड, यू रिमेंबर? Also around 5,000 years ago when Krishna left, around 5,000. Yeah, he's saying after my departure I passed through many flourishing metropolises, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, natural forests. Purport is very important. Man's activities in agriculture, mining, farming, industries, gardening, etc. were all on the same scale as they are now, even previous to the present creation. And the same activities will remain as they are even in the next creation. After many hundreds of millions of years, one creation is started by the law of nature, and the history of the universe repeats itself practically in the same way. Mundane wranglers waste time with archaeological excavations without searching into the vital necessities of life. Prabhupada is blasting them, right? He's saying, क्या खोद रहे हो तुम? क्या सालों सालों से खोद के क्या मिल रहा है तुमको? What are you doing? It is written already that what was there, what was not there. Yeah, you find it, but don't, waste your life in it. You do it as research, you find and सब कुछ करो, लेकिन don't waste your life कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो. No, you can't find out anything. How much will you dig? Millions of years के पहले का, billions of years पहले का, how will you find out anything? After getting an impetus in spiritual life, Sri Narad Muni, even though a mere child, did not waste time for a single moment with economic development. कि नहीं मैं 5 साल का अभी मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, अभी मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूं, अभी मैं कुछ शादी वादी करूं, बच्चे करूं, उनको कॉलेज भेजूं. Nothing. He didn't do that. It's not for us, but this is our Acharya. We should take inspiration for them that this is the urgency showed by Narad Muni. Although he passed towns, villages, mines, and industries, he continually went on to progressive spiritual emancipation. कहीं distract होके रुक नहीं गए कि अच्छा लग रहा है, देख लूं थोड़ा. नहीं, he didn't stop anywhere. Srimad Bhagavatam is the repetition of history, which happened some hundreds of millions of years ago. As it is said herein, only the most important factors of history are picked up to be recorded in this transcendental literature. ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी है, ऐसा नहीं है. बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट क्या करेंगे उनको पढ़ के, क्या करेंगे उनको जान के? Whatever is there here is central to our bhakti. Whatever is not is either supportive or peripheral, or not even important in fact. कि ये कब हुआ, वैसे कब हुआ. It's great to have that knowledge, worldly knowledge के लिए, but it is nothing to do with our spirituality, right? I was going through a lecture series recently about Big Bang. Devotees only world. Devotees are researching सब कुछ papers. There's a Bhakti Vedanta Institute of higher studies. तो पूरा research paper, बहुत सारे research papers हैं. मैं सब कुछ I was going through it. बहुत technical, मतलब actually वो lecture नहीं होता है, वो actually में like PhD study है. Like it's a academic study, nothing to do with Bhakti. तो मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा मुझे तो कुछ, मैं क्लास में बोलता तो हूँ ठीक है कि ये 14 लेयर है, ये है, बट मुझे एक्चुअली में तो पता ही नहीं है कुछ भी, कुछ उसमें इतना डिटेल है. Because they're actually finding out कि ये क्या है, क्या there are lots of correlations with actual science. और जो अभी modern scientists, there's a book called Big Bang and the Sages, how science is catching up to spirituality,
right? Vikram Prabhu is reading it. Then I saw it, then I researched, and then like, it's crazy. Big Bang के साथ there's something called Big Bounce. The scientists only have theorized this कि Big Bang भी हो सकता है, Big Bounce भी हो सकता है. Bounce क्या होता है कि Big Bang को बोलते हैं, you know what they say about the Big Bang? They say Big Bang कैसे हुआ? Big Bang हुआ कि एक point था, it had infinite mass and infinite mass, and it had infinite things in it, basically, right? And from that point, by chance, everything came off in one big blast. Then they say that this point jo hai, ye, how do you know that this point was there? They say that actually that point is mathematically unverified. The scientists saying this about that point. It is mathematically unverifiable, and scientifically it can't be proven. हमने बोला कि अच्छा ठीक है, that you are believing in one single point being the creation of this whole world. I am believing that there is a supreme person who created all this. You say that your point is mathematically unverifiable and unprovable. I say that Krishna is also mathematically unverifiable and unprovable. Now, on what sense does it make, what makes more sense, that a person made it, an intelligent person made it, or just by chance one point exploded? Because on the level of verification, both are the same. Then how is it possible that you have so much faith on this? Anyway, I don't want to get into it. My point is that there is a lot to research, but it has nothing to do with spirituality, nothing to do with bhakti. Good to know, to have a conversation, good to know to for just to increase understanding, but that's it. For spirituality, we don't need to understand all that. We just need to understand whatever is there in the Bhagavatam. Bhagavatam has everything. So I'm going to stop here, and if there are any questions, we can take them. Otherwise, we'll continue from here. Narad Muni की जो journey है, vision of the Lord, भगवान के दर्शन उनको होंगे at the end of this life. जब वो हिमालय जाएंगे, वो कैसे हुए, इस chapter के end में हमें पता लगेंगे. So we will discuss that in the next session. Thank you so much for joining in. If there are any questions, we can take them up. उत्तानपाद नहीं, मनु के बेटे. क्वेश्चन इज कि जो उत्तानपाद हैं वो किनके बेटे हैं? उत्तानपाद जो है ध्रुव महाराज के पिता, फादर, इज द सन ऑफ मनु, एंड मनु इज द सन ऑफ ब्रह्मा जी. एंड मनु भी अलग अलग होते हैं. वो कौन से मनु के पुत्र थे, आई डोंट नो. करंटली हमारे जो मनु है वो वैवस्वत मनु है. वो चाक्षुषा मनु, मे बी डिफरेंट मनु, बट एवरी मनु इज डिफरेंट. 12 या 14 मन, 14 मनवंतर होते, तो 14 मन. यस. Uttanpad is the son of Manu and Manu is the son of ब्रह्मा जी. यस. So जो ये वाले मनु और जो ये नारद मुनि, ये सेम या भाई हैं. हाँ, एक्चुअली वो सेम टाइम पे सेम मनु नहीं बनते हैं. मनु जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, देन हर बार मनु चेंज होता है. मनु इज अगेन अ पोस्ट. जैसे अगले मनु हमें पता है, राइट नाउ जो हमारे मनु है वो सूर्य भगवान है. विवस्वान जो है वो सूर्य भगवान के मनु है, वैवस्वत मनु. बेसिकली सूर्य भगवान के जो रिलेटेड पर्सनालिटी है. सूर्य भगवान मनु नहीं है. सूर्य भगवान से वो राइट नाउ इज ऑक्यूपाइंग द पोस्ट ऑफ मनु. द नेक्स्ट मनु इज ऑल्सो नोन कि ये टेन्योर खत्म होने के बाद नेक्स्ट बलि महाराज जो है वो नेक्स्ट मनु है. So all of this is recorded. That I don't know, I'm not sure. But आप पूछ रहे हैं कि नारद मुनि के भाई मनु, तो एक्चुअली उस टाइम पे नारद मुनि जिस मनवंतर में है, आई डोंट नो कि उस टाइम पे कौन से मनु थे. या बट सम मनु. यस. यस. नारद मुनि एक्चुअली जो जिनके भाई हैं वो बहुत अलग अलग
लोग, मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं वहां पे उस टाइम पे। वैसे नारद मुनि के वो 4 कुमार भी, हाँ भाई है, वो ब्रह्मा जी के 4 कुमार भी पुत्र है, लेकिन वो भी एक अलग टाइम पे अलग टाइम। तो ऐसे अलग अलग टाइमों पे है तो एंड द भागवतम इज नॉट क्रोनोलॉजिकल इन नेचर, वो एक क्रोनोलॉजी नहीं फॉलो करते, कभी उस मनवंतर का बताएंगे, कभी इस मनवंतर, एंड कभी आगे की स्टोरी पहले बताएंगे और पहले की स्टोरी बाद में बताएंगे, ऐसे भी होता है इसमें, राइट? तो इट्स नॉट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट्स थीमेटिक इन नेचर, थीम के हिसाब से है। फर्स्ट कैंटो जो है थीम उनका एक थीम है, ऐसे जो 12 कैंटो है सबका थीम है। इट्स अ वेरी नाइस बुक जो उस थीम्स को पूरी तरह अच्छे से बताती है। या सर्ग विसर्ग ये सब नाम है उसके। या लास्ट क्लास में जब हमको आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कृष्णा और विष्णु, उसमें आपने फाइनली पे बताया था कि इस वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड की टेकन इज बीइंग टेकन केयर बाय दुर्गा माँ। यस, थोड़ा सा सो द क्वेश्चन इज दैट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वेडनेसडे क्लास में, हाँ वेडनेसडे क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सारे विष्णु जो हैं वो गर्भोदक्षा ये सब हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने बोला था कि मटेरियल वर्ल्ड जो है दुर्गा माता उसकी अधिष्ठात्री देवी है, मटेरियल नेचर दुर्गा माँ बेसिकली संभालती है। तो आई हैव टू एक्सप्लेन सम मोर डिटेल अबाउट इट। सो एवरी लेवल पे शक्तिमान होते हैं और फिर शक्ति होती है। जैसे गोलोक वृंदावन में जो शक्तिमान है वो कृष्ण है, और जो शक्ति है वो हलादिनी शक्ति वो राधा रानी है। वैसे ही वैकुंठ लोक में नारायण है और फिर लक्ष्मी जी हैं। सीता अयोध्या या साकेत धाम बोलते हैं उसको, साकेत। तो साकेत धाम में राम जी शक्तिमान है और सीता मैया जो है वो शक्ति है। कैलाश में नीचे आते आते कैलाश आता है, आदि कैलाश, तो वहां पे सदाशिव जो है वो शक्तिमान है और जो शक्ति है वो पार्वती देवी है। और इस मटेरियल वर्ल्ड में अगेन इट इज द शक्ति इज देवी, एंड देवी भी अलग अलग, चंडी देवी, दुर्गा, Kali, there's lots of them, right? In Brahma Samhita, there's lots of names that come, and at the end, इनफैक्ट जब ये बर्थ भी होता है, जब कृष्ण का बर्थ एडवेंट होता है, तब उससे पहले एक मिसकैरिएज होता है देवकी का, दैट इज संकर्षण। एंड उससे पहले उनकी एक लड़की कन्या होती है जिनको कंस मारने की कोशिश करता है, बस हाथ से निकल जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड कि ये दुर्गा माँ है। एंड वो जब प्रे करती हैं, वो कृष्ण को प्रे करती है कि मैं आपके चरणों की सेवा करते करते इस दुनिया को संभालती हूँ, तो आई हैव come like this. So there's a lot of different things like that, but she is the material energy of the Lord. She is the material energy of the Lord. बहिरंगा शक्ति जिसको बोलते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग देवियों के रूप में अभी नवरात्रि जो चल रहे हैं सब अलग अलग देवियों पे है। उनसे भी बहुत सारे अलग अलग देवियां होती हैं। जैसे इफ यू गो टू स्मॉल कई विलेज में जाओ, स्पेशली हिल्स में या विलेजेस में आप जाओ, तो उनकी लोकल देवी होती हैं, लोकल देवीज होती हैं। तो ऑल दोज ये हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं में आते हैं। आउट ऑफ देम द प्रधान, द प्राइमरी इज दुर्गा माँ, हु इज टेकिंग केयर, मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करती हैं वो, इन द सेंस दैट ऑल द शी टेक्स केयर दैट ऑल द मटेरियल materially conditioned souls stay in the material world. उनका काम ये है हमें हमें माया में माया धाम में रखने का उनका काम है, यहीं पे रखने का, जाने नहीं देती है। इनफैक्ट शी स्टार्ट्स, अगर हम भक्ति भी करने लगे, हमको नीचे खींचने का काम है उनका, हमें नीचे खींचती हैं या टेस्ट करने के लिए। लाइक देयर आर टू वेज शी डज इट, एक है आवरणात्मिका और एक है प्रक्षेतात्मिका। इसका मतलब आवरणात्मिका मतलब कि हम कवर्ड, दैट वी आर आवरण, वी आर कवर्ड, कि हम बिविल्डर हो चुके हैं। प्रक्षेत हो कि हम उठने की कोशिश कर रहे हैं, वापस धक्का देने का काम, राइट? कि समथिंग एल्स दैट माय ओल्ड, जैसे कि कुछ होती है एक्सटर्नल इम्पेटस, किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे क्या आएगा? गुस्सा आएगा, मेरा दिमाग खराब होगा, विल डू, ये एक्सटर्नल
स्टिमुलाई से हुआ। लेकिन कभी कभी हमारा मूड खराब बैठे बैठे भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने ही हमें कुछ थॉट रैंडमली, कुछ हुआ नहीं है बाहर की दुनिया में, लेकिन हमारे दिमाग ने हमें फेंक दिया, राइट। तो इंटरनल जो आता है वो प्रीवियस कंडीशनिंग से आता है, और जो करंट आता है वो करंट सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशन, दोनों तरह से इम्पेटस आता है हमें। This keeps happening, but when we come under Krishna's shelter, then Durga Mata देखती हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है, tries to make us better, training, and then once we are done, like now we are done, you're okay now, you can leave. So the other state, Yog Maya. In the spiritual world वो योग माया कहलाती है, in the material world वो महामाया कहलाती है। महामाया का काम है हमें कृष्ण से दूर भेजना, ताकि हम अपने आप को सेंटर माने। योग माया का काम है हमें कृष्ण से पास करना, चाहे वो कृष्ण का भगवत्ता भुला के ही हो। जैसे यशोदा माई है, उनपे योग माया का इफेक्ट है। उनको पता ही नहीं लगता कि ये जो मेरा बेटा है वो भगवान है, चाहे वो मुंह में भगवत्ता दिखा रहे हैं, छुपाने की भी नहीं कोशिश कर रहे हैं। भगवान अपने मुंह में पूरा वर्ल्ड दिखा रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं, वो मानने के लिए नहीं तैयार कि मेरा बेटा। उन पे योग माया का इफेक्ट है। क्यों? बिकॉज सो दैट कृष्णा एंड यशोदा माई कैन हैव दैट रिलेशनशिप ऑफ मदर, एंड if she remembers then they can't have that, so उनसे उनको भी भुलवाती है। तो वहां पे भी काम उन्हीं का, बट वो कृष्ण से ज्यादा इंटीमेट लेके जाने के लिए, यहाँ पे कृष्ण से दूर लेके जाने के लिए। सो दिस इज द होल आइडिया। हमारी डिजायर है, इसीलिए जैसे हमारी डिजायर है माया वैसे काम करते हैं टू फैसिलिटेट दैट। So we can stop here. Thank you so much for giving your attentive ear, and hopefully we'll keep continuing this Srimad Bhagavatam next week also. Respect Durga Ma, but our primary focus is We respect Durga Ma immensely, in fact, because वो जो काम करी वो थैंकलेस जॉब। उनको कोई थैंक यू क्यों बोलेगा कि माया है, वो तो कोई नहीं थैंक यू। लेकिन वो किसकी सेवा में लगी हुई है? भगवान की सेवा में लगी है। हमें उनसे प्रार्थना करने की हो गया बहुत, प्लीज आप मुझे भगवान की तरफ लेके जाने में हेल्प करिए। दिस इज द प्रेयर वी शुड डू। आज अष्टमी है, दुर्गा माँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेरी नाइस। टुमारो इज रामनवमी। एवरी टाइम एक्चुअली नवरात्रि आती है, एट द एंड आइदर रामनवमी आती है या दशहरा आता है। सो शी इज टेकिंग अस टुवर्ड्स कृष्णा और राम और भगवान ओनली, राइट। अम्यूजिंग है कि हम लोग सारे जो बचपन से वो करते आए और अभी कितनी दुनिया कर रही है, तो कितनी पूजा करती है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को मैं मिली हूँ, मैं आते जाते जो मेरे को पता है कि they are full on in party scene and drinking, but that time say कि मैं 9 days पूरे दिन फास्ट करता हूँ। Yeah. और मतलब सब उनसे अपनी इच्छाएं की पूर्ति के लिए क्या क्या प्रकार की हमारी इच्छाएं होती है, वो हमें मालूम है, हम वो भी उनसे मांगते रहते हैं और उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते। बट दुर्गा माँ, आप सोच के देखिए, दुर्गा माँ से अगर हम कुछ मांगे वो पूरी करती हैं, राइट। लेकिन आप सोच के देखिए, वो माया है, तो माया का काम हमारा क्या है? कहाँ कृष्ण से दूर लेके जाने का। तो अगर वो कुछ हमें उनसे मांग के हमें मिल रहा है, तो उसका हमें क्या मतलब है कि मैं माया देवी रिश्तेदारों के जैसा काम या जैसे कोई चाचा ताऊ हमारे घर में आया तो वो बच्चा जो भी मांगता है उसको देते जाते हैं। और कृष्ण हमारे माता पिता माँ की तरह काम करते हैं कि जो इसके लिए ठीक है, हाँ, वही दूंगा इसको, चाहे ये कितना ही रोले, हाँ, चाहे कितना ही गाए, लेकिन जो इसके लिए जो सबसे सर्वोच्च चीज होगी वही दूंगा। और माया और जो सारे देवी देवता हैं वो सारे हमारे रिश्तेदारों की तरह हम पर काम करते हैं कि बस चुप हो जाए, अच्छा मांग रहा है दे दो, इसे दे दो, इसे ये भी दे दो, वो भी दे दो। Yes. जो देवियां हैं सब राधा रानी की expansions है। Yeah. Arjun Prabhu had a question. Prabhu, you had raised your hand. Hare Krishna Prabhu ji, Dandat Pranam. Hare Krishna Mataji. Prabhu ji, Ladini Shakti is Radha Rani, no? And Yog Maya. Yes, Mataji. Yog Maya is the spiritual energy. Are they the same? They're not the same, Mataji. It's an expansion.
but they're separate entities. In in the spiritual world, Yogamaya also takes different forms. In the spiritual world, especially in Golok Vrindavan, she takes the form of Purnamashi. Thank you. Yes, ma'am. एक मंदिर है एक्चुअली मेहरौली में, योगमाया मंदिर. मैंने पहली बार योगमाया का मंदिर देखा था. आई डोंट नो इफ हाउ बोनाफाइड, मैं बाहर से देखा है, बट या anyway, so we can stop here. Thank you so much for hearing. We'll meet next time. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Granthra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Guru Maharaj ki jai, Radhe Shyam ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna, thank you, Prabhu.